السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کھڑی حرکات کی جوڑ اور رواں پڑھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں کھڑی حرکات کی مشق۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھڑی حرکات کی مشق۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کھڑی حرکات کی پہچان کو تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں تاکہ پچھلا والا ٹاپک تھوڑا سا تازہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بغیر کھینچ کر پڑھنا، دوسرا جھٹکا نہیں دینا، تیسرا مجہول نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت۔ اور الف آتا ہے، الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف اگر خالی ہو تو اس کو الف پڑھا جاتا ہے، الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو، ٹھیک ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ الف کے اوپر جزم سکون آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، اب حمزہ ساکن۔ ٹھیک ہے، جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، را ہوتا ہے، را کے اوپر اگر زبر پیش آ جائے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور را کے اوپر کھڑی حرکات کے اندر را کے اوپر کھڑا زبر یا الٹا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کھڑی حرکات کی ہم نے پہچان پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے جوڑ اور رواں بھی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ پچھلی کلاس میں ہم نے جوڑ اور رواں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں پڑھی کھڑی حرکات کی مشق۔ ٹھیک ہے، تو کھڑی حرکات کی مشق میں ہم نے 3-4 باتیں ہیں، ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم بچوں کو کھڑی حرکات کی مشق پڑھانے لگیں تب ہم نے کھڑی حرکات کی مشق کے متعلق 3-4 باتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے بچوں کو کھڑی حرکات کی مشق پڑھوانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات ہم نے پڑھانی بچوں کو، وہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑی حرکات آ جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں لکھ لیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات ہے کسی بھی حرف کے اوپر، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر کھڑی حرکات آ جائے، ٹھیک ہے، کھڑی حرکات، اب کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، کسی بھی حرف کے اوپر کھڑی حرکات آ جائے، ٹھیک ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے۔ تو جب بھی ہم بچوں کو کھڑی حرکات کی مشق پڑھانے لگیں تو کھڑی حرکات کی مشق کے متعلق ہم نے چند باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ہیں اور بچوں کو بھی وہ باتیں یاد کروانی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہے کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑی حرکات آ جائے، کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں آمن، ٹھیک ہے، آمن، یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، الف ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اب الف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی الٹا پیش آ جائے تو الف کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب حمزہ کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر. کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے. ٹھیک ہے. اب قاعدہ کیا کہتا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑی حرکات آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آمن، ٹھیک ہے. تو حمزہ کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. میم کو ہم نہیں کھینچیں گے، نون کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے، کیونکہ ان کے اوپر حرکات ہے، بڑی حرکات ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زبر زیر پیش کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے. زبر زیر پیش کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حرکات کے دو قسم ہیں. ٹھیک ہے. حرکات کے دو قسم ہیں. ان حرکات کے دو قسموں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. حرکات کے دو قسم. ٹھیک ہے. ایک بڑی حرکات ہے. ٹھیک ہے. بڑی حرکات ہے جیسے ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کھڑی حرکات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کھڑی حرکات ہے. ٹھیک ہے. اب بڑی حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زبر اٹھا پیش کو. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے حرکات کی دو قسمیں ہیں، یعنی کس حرف کو بغیر کھینچ کر پڑھنا ہے اور کس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں حرکات بتائیں گی. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا تو اس کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. تو ہر بڑی حرکات زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہوگی تو ان کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی حرف کے اوپر کھڑی حرکات آ جائے، کھڑا زبر کھڑی اٹھا پیش، ٹھیک ہے، تو اس حرف کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آمن. ٹھیک ہے. آمن. ٹھیک ہے. تو حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی حرکات ہے. تو حمزہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور میم اور نون کے اوپر کیا ہے؟ بڑی حرکات ہے، زبر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بڑی حرکات کو نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے حرکات کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی حرکات، دوسرا کھڑی حرکات. ٹھیک ہے. اب ہم نے بڑی حرکات کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھنا ہے اور کھڑی حرکات کو ایک الف مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے حرکات کی دو قسمیں تھیں. ٹھیک ہے. اب بڑی حرکات کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرف کے اوپر بڑی حرکات ہوگی اس کو نہیں کھینچا جائے گا، جس طرف کے اوپر کھڑی حرکات ہوگی تو اس طرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے من. ٹھیک ہے. حمزہ کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب من میم کو نہیں کھینچا جا رہا، نون کو بھی نہیں کھینچا جا رہا. ٹھیک ہے. تو آمن. ٹھیک ہے. مالکی. ٹھیک ہے. میم کھڑا زبر میم کے پر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. میم کے پر کھڑا زبر ہے، میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام زیر لی کاف زیر لی. ٹھیک ہے. تو مالکی. ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے. لیکی. تو لام کو بھی نہیں کھینچا جائے گا اور کاف کو بھی نہیں کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مالکی. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ جس حرف کے اوپر بڑی حرکات ہوگی زبر زیر پیش اس کو نہیں کھینچا جائے گا، بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جائے گا، اور جس طرف کے اوپر کھڑی حرکات ہوگی تو اس طرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. مالکی. لیکی. آدم. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑا زبر آدم. ٹھیک ہے. تو ہم حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اور دال کو نہیں کھینچیں گے، میم کو بھی نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے اوپر بڑی حرکات ہے، زبر زیر پیش ہے. ٹھیک ہے. تو زبر زیر پیش کو نہیں کھینچا جاتا اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑ جاتے ہیں. کھڑا زبر کھڑی زبر اٹھا پیش. ٹھیک ہے. تو آدم. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے حرکات کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑی حرکات، دوسرا کھڑی حرکات. بڑی حرکات کے اندر زبر زیر پیش آتی ہے جن کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے، اور دوسری کھڑی حرکات ہے جو کھڑا زبر کھڑی زبر اٹھا پیش ہے جس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر آپ کو یہ حرکات کی دو قسمیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اور تیسری تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو حرکات آپ کو یہ ملیں گی قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ تھی. ٹھیک ہے.
پہلی بات یہ تھی کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑی حرکات آ جائے ٹھیک ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے. تو اب میں نے سمجھ لیا ہے کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر ہوگی یا کھڑی زیر الٹا پیش کھڑی حرکات ہوگی تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے. اب جس حرف کے اوپر پڑی حرکات ہوگی زبر زیر پیش ہوگی تو اس کو نہیں کھینچا جائے گا ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں دوسری بات ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں دوسری بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ لفظ کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو ٹھیک ہے. لفظ کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو ٹھیک ہے یعنی کھڑی زیر نہ ہو الٹا پیش نہ ہو ٹھیک ہے. تو لفظ کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم وقف میں بغیر وقف میں ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے. لفظ کے آخری پر کھڑا زبر ہو تو اسے وقف میں یا بغیر وقف میں ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات ہے لفظ کے آخری حرف پر ٹھیک ہے. لفظ کے عقل میں کہ ٹھیک ہے لفظ کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو تو اسے وقف میں یا بغیر وقف میں یا بغیر وقف میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا یا اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات ہے لفظ کے آخری حرف پر یا کلمے کے آخری حرف بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. لفظ کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو ویسے تو کھڑی زیر بھی آتی ہے الٹا پیش بھی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات جو ہے وہ کھڑا زبر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے. تو اس بات کو اپنے یاد رکھنا کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو یہ کھڑا زبر ٹھیک ہے. اس بات کو اپنے یاد رکھنا یہ کھڑا زبر ہو ٹھیک ہے. کھڑا زبر ہو تو اسے وقف میں یا بغیر وقف میں ٹھیک ہے وقف میں یا بغیر وقف میں ٹھیک ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے یا اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے یا اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے قرآن کے اندر مثالیں ہیں عَلَا ٹھیک ہے عین زبر ع لا کھڑا زبر لا ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخری حرف جو ہے لام ہے لام کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم وقف کریں یا نہ کریں لفظ کا آخری حرف جو ہے لام ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے. تو اس کو وقف میں بغیر وقف میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے. جیسے عَلَا وقفاً عَلَا ٹھیک ہے. یحیا ٹھیک ہے یا حا زبر یا کھڑا زبر یا ٹھیک ہے یحیا ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخری حرف جو یا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم وقف کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے وقف میں یا بغیر وقف میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے. یا حا زبر یا ساکن یا کو حا کے ساتھ ملیں گے حا ساکن حا کے اوپر جزم سکون ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ یا ہے یا کے اوپر کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے. یحیا ٹھیک ہے وقفاً یحیا ٹھیک ہے. تو یہاں پر لفظ کا آخری جو یا ہے یا کے اوپر کیا کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں پر وقف کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے یا کو اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یا کے اوپر کھڑی حرکات ہے ٹھیک ہے. وقف میں یا بغیر وقف میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے. تو یحیا وقفاً یحیا عَلَا وقفاً عَلَا ٹھیک ہے. یخشا یا خا زبر یخ شین کھڑا زبر شا ٹھیک ہے یخشا ٹھیک ہے. تو لفظ کا آخری کون سا شین ہے شین کے اوپر کیا کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے. تو لفظ کا آخری شین ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. اب ہم یہاں پر وقف کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے شین کو اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے. جیسے یخشا وقفاً یخشا ٹھیک ہے. شین کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا وقف میں یا بغیر وقف میں اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. یسعی یا سین زبر یس عین کھڑا زبر ع ٹھیک ہے. یسعی وقفاً یسعی ٹھیک ہے. تو یسعی میں لفظ کا آخری جو عین ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم وقف کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے وقف میں یا بغیر وقف میں عین کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے. جیسے یسعی وقفاً یسعی لفظ کا آخری جو عین ہے
उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो आइन को हम वक़्फ़ में बगैर वक़्फ़ में एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, अपनी असली हालत में पढ़ेंगे, ठीक है। यसआ वक़्फ़न यसआ, ठीक है। और आवा ज़ा खड़ा ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर वा, ठीक है। आवा वक़्फ़न आवा, ठीक है। तो यहाँ पर हमज़ा को खींच कर पढ़ेंगे कि हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत है, जिस तरफ के ऊपर खड़ी हरकत आ जाए, खड़ा ज़बर खड़ी उल्टा पेश आ जाए, उस तरफ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। और लफ्ज़ का आखिर जो है वाव है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वक़्फ़ में या बगैर वक़्फ़ में वाव को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। आवा वक़्फ़न आवा अबक़ा, ठीक है। हमज़ा बा ज़बर अब, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ा, ठीक है। अबक़ा, ठीक है। तो हमज़ा बा ज़बर अब, बा के ऊपर कलकला होगा, बा साकिन है। जब हरफ कलकला साकिन होते हैं, क़ाफ़ तो बा जीम दाल, ठीक है। जब हरफ कलकला साकिन होते हैं तो उन पर कलकला होता है, ठीक है। तो बा साकिन और हरफ कलकला में से, ठीक है। तो बा के ऊपर कलकला होगा, ठीक है। अब क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ा, ठीक है। बा की मक़दम में जंबिश होगी, ठीक है। तो अब क़ा, ठीक है। तो क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ा, ठीक है। क़ाफ़ के ऊपर क्या है, खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो उसको वाक़िफ़ में बगैर वाक़िफ़ में एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, अपनी असली हालत में पढ़ेंगे, ठीक है। वाक़िफ़ करे या ना करे, ठीक है, उसको अपनी असली हालत में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अबक़ा वक़्फ़न अबक़ा, लफ्ज़ का आखिरी जो क़ाफ़ है, मोटा क़ाफ़ है, ठीक है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो लफ्ज़ के आखिरी अगर खड़ा ज़बर हो तो उसको वक़्फ़ में या बगैर वक़्फ़ में एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, अपनी असली हालत में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात थी, ठीक है, या दूसरा कायदा था, लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर खड़ा ज़बर हो, ठीक है। वैसे तो खड़ी ज़ेर भी आती है, जैसे युहयी वक़्फ़न युहयी, ठीक है। तलवू वक़्फ़न तलवू, उनको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात खड़ा ज़बर की है, ठीक है। तो उसे वक़्फ़ में या बगैर वक़्फ़ में एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, यानी अपनी असली हालत में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक बात ज़हन में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो या है, ठीक है, वैसे तो लाम पढ़ा जाएगा, लाम खड़ा ज़बर ला। अब ये जो या है, यहाँ पर ये या है, ठीक है, वैसे तो ये या पढ़ा जाएगा, या खड़ा ज़बर या। अभी यहाँ पर ये या है, ठीक है, ये है, और तीसरा ये है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। ये भी बात आपको ज़हन में आ रही होगी कि ये जो या है वो क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। वैसे आपको ये बात भी ज़हन में होगी कि ये जो या है, ये है, ये है, या ये है, ये क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, ये या क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये बात भी आपको ज़हन में होगी कि ये या क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, ये या क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अला में है, ये या है, ये है, ठीक है। अबका के साथ ये या है, क़ाफ़ के साथ है, तो ये या क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से भी एक कायदा है, ठीक है, इस हवाले से भी एक कायदा है जो हमने पढ़ना है। इसके बाद आएगा, ये कायदा नंबर 2 था, अब कायदा नंबर 3 है, फिर उसके बाद कायदा नंबर 4 है, ठीक है। तो उस हवाले से भी एक कायदा है, तो उसको मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। तो खड़ा ज़बर के साथ है, ठीक है, इस बात को आपने नोट रखना है। खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव भी लिखा हुआ होता है और कहीं या भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। कहीं वाव भी लिखा हुआ होता है, कहीं या भी लिखा हुआ होता है। खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव भी लिखा हुआ होता है, कहीं या भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तो उसको या मकसूरा कहा जाता है, ठीक है। इस या को क्या कहा जाता है, इस या को या मकसूरा कहा जाता है, ठीक है। तो खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव भी लिखा होता है, कहीं या भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये या है, ठीक है, आला, तो इस या को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहया, तो इस या को हम नहीं पढ़ेंगे। ये जो या है उसके ऊपर खड़ा ज़बर ये पढ़ी जा रही है, यहया, ठीक है। यख्शा, ठीक है, शीन खड़ा ज़बर शा, ठीक है, ये या नहीं पढ़ी जा रही, या मकसूरा है, ठीक है। यसआ, ठीक है, तो आइन पढ़ा जाएगा, ठीक है। आइन खड़ा ज़बर आ, ठीक है, ये या नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये या नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये या मकसूरा है, ठीक है। ये या मकसूरा है, ये भी 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 या मकसूरा है, ठीक है। तो अरबी के अंदर इनका ये कायदा है, ठीक है। खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव भी लिखा हुआ होता है, कहीं या भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो खड़ा ज़बर के साथ हम वाव को नहीं पढ़ेंगे और या को भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब या की मिसालें थी, वाव की मिसालें ये है, ठीक है। जैसे स्वलातन, ठीक है,
तो ये है वाव की मिसाल, ठीक है। स्वलातन, जैसे हम पढ़ते हैं स्वलातन, ठीक है, स्वलातन स्वलातन, ठीक है। तो सौद ज़बर स्वलाम खड़ा ज़बर ला, स्वलाता दो ज़बर तन, ठीक है। तो देखें लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, उसके साथ वाव भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस वाव को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। स्वलातन स्वलातन, ठीक है, दा दो ज़बर तन, स्वलातन, तो वक़फ़न स्वलाह, ठीक है। तो यहाँ पर लफ्ज़ का आखिरी जो है गोलता है, ठीक है, गोलता है, वो बाद में वक़्फ़ यहाँ साकिन से बदल जाएगा, ठीक है। स्वलातन वक़फ़न स्वलाह स्वलाह, ठीक है। तो उस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी एक कायदा है, खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव भी लिखा हुआ होता है, कहीं या भी लिखा हुआ होता है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, खड़ा ज़बर को पढ़ेंगे। अला वक़फ़न अला, यहया वक़फ़न यहया, यख्शा वक़फ़न यख्शा, यसआ वक़फ़न यसआ, ठीक है। आवा वक़फ़न आवा, ठीक है। अबक़ा वक़फ़न अबक़ा, ठीक है। तो इन बातों को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये था दूसरा कायदा, कलमे के आखिरी हरफ पर खड़ा ज़बर हो, खड़ा ज़बर हो, ठीक है। तो उसे वक़्फ़ में या बगैर वक़्फ़ में एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे या अपनी असली हालत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव भी लिखा हुआ होता है, कहीं या भी लिखा हुआ होता है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ खड़ा ज़बर को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस बात को आपने याद रखना है। तो ये था दूसरा कायदा। अब तीसरा कायदा जो है वो यही कायदा था, ठीक है। तो उसको भी दोहरा देते हैं ताकि बात जो है वो वाज़ेह हो जाए और आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो तीसरा कायदा जो था वो यही था, तो उसको भी लिख लेते हैं और दोबारा से समझा देते हैं ताकि बात जो है वो आपके ज़हन में बैठ जाए, ताकि बच्चों को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकें और समझा सकें, ठीक है। तो इस बात को भी हम दोबारा से दोहरा देते हैं। खड़ा ज़बर के साथ, ठीक है, खड़ा ज़बर के साथ है कहीं, ठीक है, कहीं वाव, ठीक है, कहीं वाव और कहीं या, ठीक है, या लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा कायदा है, खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव और कहीं या लिखे हुए होते हैं, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने मिसालें पढ़ी थी यसआ, ठीक है, यसआ, या सीन नंबर यस आइन खड़ा ज़बर आ, ठीक है। तो हम इस या को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये या मकसूरा है, ये सिर्फ लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती, बगैर नुक्तों वाली या होती है, ठीक है। जैसे हम बगैर नुक्तों वाली या कहते हैं, ठीक है, यसआ वक़फ़न यसआ, ठीक है। आवा, ठीक है, आवा वक़फ़न आवा, ठीक है। तो यहाँ पर भी या लिखी हुई है, ठीक है। तो ये या मकसूरा है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आवा बगैर नुक्तों वाली या, ठीक है। स्वलातन, ठीक है, स्वलातन ठीक है। तो ये वही मिसालें जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। स्वलातन स्वलातन वक़फ़न स्वलाह, तो यहाँ पर लफ्ज़ का आखिरी जो गोलता है वो वक़्फ़ की वजह से गोलता बाद में हा साकिन हो गया, ठीक है। तो लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है, वाव नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो खड़ा ज़बर के साथ, खड़ा ज़बर के साथ कहीं वाव भी लिखा होता है, या भी लिखा होता है, तो या बगैर नुक्तों वाली होती है, ठीक है। तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये तीसरा कायदा था, ठीक है। ये भी अरबी का एक कायदा है, ठीक है, कि या सिर्फ लिखी होती है, पढ़ी नहीं जाती। तो ये तीसरी बात थी। अब हम पढ़ते हैं चौथी बात, ठीक है। अब चौथी बात कौन सी है? अब चौथी बात ये है कि चौथा कायदा, लफ्ज़ का आखिरी हरफ वक़्फ़ में साकिन हो, ठीक है, कलिमे का आखिरी हरफ वक़्फ़ में साकिन हो, ठीक है, और उससे पहले खड़ा ज़बर हो, ठीक है, उससे पहले खड़ा ज़बर हो। लफ्ज़ का आखिरी हरफ वक़्फ़ में साकिन हो और उससे पहले खड़ा ज़बर हो, ठीक है। तो जब हम वहाँ पर वाक़िफ़ करेंगे तो वक़्फ़ में 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कायदे को हम लिख लेते हैं ताकि बात जो है वो वाज़ेह हो जाए, ठीक है। कायदा नंबर 4 है, ठीक है। ये खड़ी हरकत की मश्क में हम ये कायदे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा
चौथी बात है, चौथा कायदा, ठीक है, कलमे का आखिरी हरफ, ठीक है, आखिरी हरफ वक्फ में साकिन हो, ठीक है, वक्फ में साकिन हो, ठीक है, यानी कलमे का आखिरी वक्फ में साकिन हो रहा हो, ठीक है, वक्फ में साकिन हो रहा हो, ठीक है, और उससे पहले खड़ा ज़बर हो, ठीक है, यानी कलमे का आखिरी वक्त में साकिन हो रहा हो और उससे पहले वाला हरफ जो उसके ऊपर खड़ा ज़बर हो, ठीक है। तो वाकिफ में जब हम वहाँ पर वाकिफ करेंगे तो वाकिफ में हम 2 से 3, ठीक है, 3 अलिफ के बराबर, 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है, खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चौथा कायदा है, ठीक है। कलमे का आखिरी वक्त में साकिन हो रहा है, वक्त में साकिन हो रहा है और उससे पहले वाले हरफ पर खड़ा ज़बर है, ठीक है, यानी उससे पहले वाला हरफ उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो वक़्फ़ जब हम करेंगे, जब वहाँ पर हम ठहरेंगे, जब हम वक़्फ़ करेंगे, ठीक है, तो वक़्फ़ में 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे सलामुन, ठीक है, सलामुन वक़फ़न सलाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज़ का आखिरी जो है, कलमे का आखिरी वक़्फ़ में साकिन हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज़ का आखिरी जो है मीम है, वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा है, उसके बाद 2 पेश हुआ है, तनवीन है, वक़्फ़ में साकिन हो रही है, ठीक है। तो अब उससे पहले क्या है, खड़ा ज़बर है, लाम में उसके बाद खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे, ठीक है, तो वक़्फ़ में 2 से, ठीक है, 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे सलामुन सलामुन, ठीक है, सलामुन वक़फ़न सलाम सलाम, ठीक है। मध्य आर्ज़ वक़फ़ी करेंगे तो वक़्फ़ में 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब उंगलियों को दरमियानी रफ्तार से हमने खोलना है, ठीक है, सलाम, ठीक है। तो उसी को कहते हैं 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ना, ठीक है। कलमे का आखिरी वक़्फ़ में साकिन हो रहा है, ठीक है, वो मीम है, वक़्फ़ में साकिन हो रहा है, ठीक है, और उससे पहले वाला हरफ जो लाम है उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे, ठहरेंगे, तो वक़्फ़ की सूरत में हम 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सलामुन वक़फ़न सलाम, ठीक है, इलाफी, ठीक है, इलाफी वक़फ़न इलाफ, इलाफी ज़ेफ़ी वक़फ़न इलाफ, इलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जिस हरफ के ऊपर खड़ी हरकत है, लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत है, यहाँ पर भी लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, तो उसको हम 1 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहला कायदा पढ़ा था, किसी भी हरफ के ऊपर अगर खड़ी हरकत हो, खड़ा ज़बर खड़ी उल्टा पेश हो, तो उसको 1 अलिफ की मकदार तक खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये था चौथा कायदा, कलमे के आखिरी हरफ वक़्फ़ में साकिन हो रहा और उससे पहले वाले पर खड़ा ज़बर हो, ठीक है, तो वक़्फ़ में 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। इलाफी वक़फ़न इलाफ, ठीक है, तो वक़्फ़ में हम 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे यदाहु, या ज़बर या, दाल खड़ा ज़बर दा, हा पेश, ठीक है, यदाहु यदाहु, ठीक है, वक़फ़न यदाह, ठीक है, यदाह, ठीक है। यहाँ पर खड़ी हरकत के बाद, ठीक है, कलमे के आखिरी वक़्फ़ में साकिन है जो कि हा है, ठीक है। अब हा जो है वो बाहर लेते वक़्फ़ में हा साकिन से बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पेश है, पेश जो है वक़्फ़ में साकिन हो जाता है, ठीक है। तो कलमे का आखिरी जो है वो हा है जो कि वक़्फ़ में साकिन हो रहा है और उससे पहले वाला लफ्ज़ जो है वो दाल है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे, ठहरेंगे, तो वक़्फ़ में 2 से 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे यदाहु वक़फ़न यदाह, ठीक है। तो यहाँ पर लफ्ज़ का आखिरी गोल है जो कि बाल में हा साकिन से बदल जाएगा, ठीक है। तो ये था
चौथा कायदा, कलमे का आखिरी वक्त में साकिन हो रहा है, ठीक है, उससे पहले वाला रफ जो है उसके ऊपर खड़ा ज़बर हो तो वक्त में 2 से 3 अलिफ बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था चौथा कायदा। अब पढ़ते हैं हम पाँचवा कायदा, ठीक है, पाँचवीं बात है। अब पाँचवा कायदा ये है कि लफ्ज़ का आखिरी अब गो लहा हो, लफ्ज़ का आखिरी अब गो लहा हो तो उसे बहालत वक्त में हा साकिन से बदल देंगे, ठीक है। तो ये पाँचवीं बात है, ठीक है। तो इस पाँचवीं बात को पढ़ते हैं ताकि बात जो है वो वाज़ेह हो जाए, ठीक है। कलमे का आखिरी हरफ, कलमे का आखिरी हरफ गो लहा हो, ठीक है, गो लहा ये हो, ये गो लहा हो, ठीक है। कलमे का आखिरी हरफ गो लहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा ज़बर ना हो, ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा ज़बर ना हो, ये नहीं, ये खड़ा ज़बर ना हो, ठीक है, खड़ा ज़बर ना हो, खड़ा ज़बर ना हो, ठीक है। तो उस गो लहा को बहालत वक्त में हा साकिन से बदल देंगे, ठीक है। तो उस गो लहा को, ठीक है, उस गो लहा को बहालत वक़्फ़ में, बहालत वक्त में हा साकिन से बदल देंगे, ठीक है। यानी ये गो लहा होगी, ठीक है, या ये गो लहा होगी, उसके ऊपर कोई हरकत होगी, ठीक है, तो वो बहालत वक्त में हा साकिन से बदल जाएगी, हा साकिन से बदल जाएगी या बदल देंगे, ठीक है, बदल देंगे, ठीक है। तो ये कायदा है, ठीक है। कलमे के आखिरी हरफ गो लहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा ज़बर ना हो तो उस गो लहा को बहालत वक्त में हा साकिन से बदल देंगे, ठीक है। तो इस कायदे को आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं लहू, ठीक है, लहू, ठीक है, लहू, लाम ज़बर ल, हाँ उल्टा पेश हू, ठीक है, लहू वक़फ़न लह, ठीक है। तो वक़फ़ में हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, लाम हा ज़बर लह, ठीक है, लहू वक़फ़न लह, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें लफ्ज़ का आखिरी हरफ जो है, कलमे का आखिरी हरफ जो है वो गो लहा है, ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा ज़बर नहीं है, खड़ा ज़बर नहीं है, फिर क्या है, उल्टा पेश है, ठीक है। लफ्ज़ का आखिरी हरफ जो है वो गो लहा है और उसके ऊपर खड़ा ज़बर नहीं है, ठीक है, खड़ा ज़बर नहीं है, उल्टा पेश है, ठीक है। तो अब जहाँ पर हम वक़्फ़ करेंगे, ठहरेंगे, तो गो लहा को बहालत वक्त में हम हा साकिन से बदल देंगे, ठीक है। जैसे लहू वक़फ़न लह, ठीक है, पर लिखा ऐसे होता है, पढ़ा ऐसे जाता है, लहू वक़फ़न लह, ठीक है। बिही, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही वक़फ़न, ठीक है। जब हम वक़्फ़ करेंगे, ठहरेंगे, यहाँ पर भी वक़्फ़ है, ठीक है, वक़फ़न बी, ठीक है। तो कलमे का आखिरी गो लहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा ज़बर ना हो, ठीक है, क्योंकि खड़ा ज़बर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। खड़ा ज़बर ना हो तो उस गो लहा को बहालत वक्त में हा साकिन से बदल देंगे, ठीक है। बी ही वक़फ़न बी, ठीक है, फिर कुरान के अंदर लिखा ऐसे होता है, बी ही, हा खड़ी ज़ेर ही, खड़ी ज़ेर लिखी होती है, लेकिन वक़्फ़ की वजह से गो लहा जो है वो बहालत वक्त में हा साकिन से बदल जाता है, ठीक है। लिखा ऐसे होता है, फिर पढ़ा ऐसे जाएगा, बिही वक़फ़न बी, ठीक है। सुबहानहू, ठीक है, सीन बा पेश, सुब, हा खड़ा ज़बर हा, सुबहानहू, ठीक है, सुबहानहू वक़फ़न सुबहानह, ठीक है। फिर वक़्फ़ की वजह से ऐसे पढ़ा जाएगा, गो लहा जो है वो बहालत वक्त में हा साकिन से बदल जाएगा, ठीक है। सुबहानहू वक़फ़न सुबहानह, सुबहानह, ठीक है, नून हा ज़बर नह पढ़ा जाएगा, ठीक है। किताबहू, ठीक है, ज़ेर की ता खड़ा ज़बर, किताब ज़बर पे आउला पेश, किताबहू, किताबहू वक़फ़न किताबह, किताबह, ठीक है। तो लफ्ज़ का आखिरी जो है वो गो लहा है, उसके ऊपर उल्टा पेश है, यहाँ पर भी उल्टा पेश है, यहाँ पर भी उल्टा पेश है, ठीक है। तो वो वक़्फ़ में साकिन हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर नहीं है, ठीक है। तो वाक़िफ़ करेंगे तो गो लहा को बहालत वक्त में हा साकिन से बदल देंगे, ठीक है। सुबहानह किताबह, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि गो लहा के ऊपर खड़ा ज़बर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है।
गोल हा होगा और उसके ऊपर खड़ा ज़बर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर का आखिरी लफ्ज होगा वो गोल हा होगा। ठीक है, वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो। ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा ज़बर ना हो। ठीक है, तो खड़ा ज़बर नहीं होगी, या खड़ी ज़ेर होगी या उल्टा पेश होगा। ठीक है, लफ्ज़ का आखिरी लफ्ज होगा वो गोल हा होगा और उसके ऊपर खड़ा ज़बर नहीं होगा, क्योंकि खड़ा ज़बर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, अब गोल हा के ऊपर या तो खड़ी ज़ेर होगी या उल्टा पेश होगा। ठीक है, अब या खड़ी ज़ेर होगी या उल्टा पेश होगा, गोल हा के ऊपर होगा। ठीक है, तो गोल हा को बाल लेते वक्त में हम हा साकिन से बदल देंगे। ठीक है, तो उल्टा पेश भी बाल लेते वक्त में साकिन हो जाएगा और खड़ी ज़ेर भी बाल लेते वक्त में हा साकिन से बदल जाएगी। ठीक है, तो खड़ा ज़बर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, लफ्ज़ के आखिरी पर खड़ा ज़बर हो, ठीक है, तो उसको वाक़ई में भी एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ेंगे और बगैर वाक़ई में भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दूसरा कायदा हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे यसआ वक्फन यसआ। ठीक है, युहयी वक्फन युहयी। ठीक है, तलवू वक्फन तलवू। ठीक है, तो ये हमने दूसरा कायदा पढ़ा था। लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो। ठीक है, लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो तो उसको हम वक़्फ़ में भी या बगैर वक़्फ़ में एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, अपनी असली हालत में पढ़ेंगे। तो लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो तो उसको वक़्फ़ में या बगैर वक़्फ़ में हम असली हालत में पढ़ेंगे। यानी जब हम वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़ की सूरत में भी वहाँ पर जो खड़ा ज़बर होगा वो भी वक़्फ़ की सूरत में पढ़ा जाएगा, खड़ी ज़ेर होगी तो वो भी वक़्फ़ की सूरत में पढ़ी जाएगी, उल्टा पेश होगा तो वो भी वक़्फ़ की सूरत में पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी वक़्फ़ करें या ना करें लेकिन उनको अपनी असली हालत में पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो हमने पहले कायदा दूसरा कायदा पढ़ा था, तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां कायदा था। ठीक है, कलमे का आखिरी हरफ गोल ना हो। ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा ज़बर ना हो। ठीक है, तो उस गोल हा को बाहर लेते वक्त में हा साकिन से बदल देंगे। ठीक है, और गोल हा के ऊपर आपको खड़ा ज़बर की मिसाल आपको कुरान के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ये मुख्तसर क्लास थी जिसमें आज हमने खड़ी हरकत की मशक पढ़ी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी और आपके जहन में बैठ गई होगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे दूसरी और क्लास में, तब तक के लिए हमको दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।